नाइट्रोजन के अंदर में द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर लाइक the balanced atomic orbitals 2s containing 2 electrons and 2p containing 3 electrons. The other atom will have similar configuration. There will be one sigma bond between two orbitals. The orbital which will be forming sigma bond from both the n atoms is considered to be along z-axis, and rest two other orbitals will be forming pi bonds. Rest two orbitals will be forming pi bonds. This green colored pairing is referred as sigma bond formation, and the other two are going to form parallel overlap. Again, the same way as I told that day, one of them is going to form sigma bond, XX over ZZ overlapping, and rest two of nitrogen orbitals, that is 2px and 2py, will be forming uh, a uh, pi bonds. Yeah. Apart from that, this bond will be along the sigma bond will be along internuclear axis, whereas pi bond between px and py will be uh, like above and below. Py will be in y plane and z plane, uh, and it will be lying above the internuclear axis and below the internuclear axis, half donors. And then similarly, uh, px and px, that will be lying along x and z plane, x plane and z plane. XZ plane में it will be lying as half donut and half donut like this. The half donuts, the half plus half donut and plus minus half donut. So ये Z X वाले में एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और Y वाले में भी एक ऊपर में और एक नीचे में. इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है. यहाँ से ये ऊपर वाला Y का हाफ डोनट और फिर नीचे वाला Y का हाफ डोनट. सो इस टाइप का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इन बॉन्ड when in N2 molecule. Coming to carbon-carbon bonding, you guys can note this. एंड ये नोट कुछ मॉलिक्यूल्स के इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि आपको किसी भी अननोन मॉलिक्यूल का अगर कभी आता है, यू कैन थिंक इन दीज टर्म्स. कौन सा ऑर्बिटल, अगर z ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है सिग्मा बॉन्ड में, तो फिर बाकी कौन कौन से बचे हुए हैं जो अनयूटिलाइज्ड हैं, या जिनके अंदर में लोन पेयर है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. लोन पेयर वाला सिर्फ कोऑर्डिनेशन के काम में आएगा, बाकी सिंगल जो है वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. तो बाकी जो जेड के अलावा बचते हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन से, दे कैन पार्टिसिपेट इनटू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. सिमिलरली ये इथीन का है. इथीन के अंदर में भी है 2s2 and 2p2, 2p orbitals participating into bond formation. 2p or 2 electrons of p orbital, and यहाँ पर 2p orbitals, they are going to participate in bond formation. और इसमें ऐसा होता है कि कार्बन का बॉन्डिंग के पहले, just before bonding, it is presumed that this 2s electron promotes itself into one of the 2p vacant orbital. This 2s electron promotes itself into 2p orbital before bonding. ठीक है? This process is called hybridization. This promotion of electron is called hybridization into one of the vacant orbital. Unpairing of s electrons or unpairing of p electrons to get off it. S वाला p में प्रमोट होकर के चला जाता है और p वाला कोई ये क्या बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, p का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो जनरली d में प्रमोट होकर के चला जाता है, सो दैट देयर कैन बी
single electrons, and then effective bonding can take place between. तो 2s के साथ तो हाइड्रोजन हाँ 2s वाला प्रमोट होकर के आता है, 2s वाले के साथ मतलब जरूरी नहीं है 2s वाले के साथ ही आए। इसके बाद फिर ये होता है ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 3 p में, तो 3 p में से 2 p और एक s ऑर्बिटल मिक्स होते हैं and they are forming this sp2 hybridized orbital, ठीक है, और ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड बन जाता है प्योर फॉर्म। नाउ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है जनरली दे आर गोइंग टू फॉर्म और ये hybridized orbital are going to form sigma bonds always. Yeah, hybridized orbitals will always form sigma bond except one molecule or one chemical entity which is referred as benzene, ठीक है, benzene is the only, यहाँ पर लिखा हुआ है this is an exception you can say or extraordinary case. It is the only case where a hybridized orbital participates into forming pi bond. Hybridized orbital participates in formation of pi bond. Except this, at our level, we don't have to encounter any molecular species or any ionic species or any covalent bonded species which will have pi bond being formed by hybridized orbital. ठीक है, सिर्फ यही एक एग्जांपल, मतलब ये एक काउंटर एग्जांपल है जहां पर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैन फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा हर जगह हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसका मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड होगा बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जहां पर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, सॉरी पाई बॉन्ड्स। Hybridized orbitals will not form pi bonds anywhere else except benzene, ठीक है। so, जो ये हाइब्रिडाइज हुए s वाला ऑर्बिटल और p वाले ऑर्बिटल मिल करके 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए इक्विवेलेंट, एंड उनमें से एक आपस में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और बाकी 2 ऑर्बिटल्स 2 s h के साथ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, h के ऑर्बिटल्स के साथ, 1s ऑर्बिटल के साथ दोनों पर हाँ ये S वाला इस P में आ गया, ये 2 P में पहले से थे और ये S में एक बचा, तो 3 ऑर्बिटल और 3 इलेक्ट्रॉन, हाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हाइब्रिडाइज हुए और ये आ गए यहाँ, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मींस इंटरमिक्सिंग ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देम। जैसे तुम्हारे पास 5 रुपए है, मेरे पास 4 रुपए है और अथर्व सामंत के पास 4 रुपए है, ठीक है। हमने डिसाइड किया कुछ खाना है जो कि 4 रुपए से थोड़ा ज्यादा बट 5 रुपए से कम में मिल रहा है, ठीक है। तो ऑल ऑफ अस मिक्स्ड आवर मनी 5 4 4 it became 14 and then we ordered 3 things which costed us 14 रुपीज ऑल टुगेदर, ठीक है। या 15 कॉस्ट कर रहा था, हमने बार्गेन किया 14 में मिलने लगा, तो तुम्हारे 5 और हमारे 4 मिल करके जितने भी होते हैं उतने में हमने खरीद लिया उसको, या 15 का 13 में खरीद लिया, ठीक है। इट इज सेम थिंग, somebody has some higher energy or some lower energy, rest of them has some different energy. Now a combination of that happens, a combination of those things happen, the energies happen, and then the energy gets redistributed equally in 3 parts. It gets distributed equally in 3 parts. Is it okay? That is called hybridization or intermixing of orbital just before bond formation. सर और वो 1s नीचे वो तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के this and this, they are hydrogens, ठीक है। इनके स्पिन जो होंगे वो रिवर्स होने चाहिए, हाँ बोलो। दो रीजंस हैं, पहला है मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी और दूसरा है मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी से ज्यादा हाँ मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी भी होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में
लीस्ट रिपल्सन कराने के लिए वो होता है। दूसरा चीज होता है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। जैसे मीथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जो बिना हाइब्रिडाइजेशन के हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके दो रीजंस हैं, टेक्निकल रीजंस, पहला मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी और दूसरा दैट इज थ्योरेटिकल रीजन। एंड एक्सपेरिमेंटल रीजन जो होता है या ओरिजिन जो होती है उसकी, दैट कम्स फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है। तो वो आने वाला है बीबीटी खत्म होने के बाद, दैट इज द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डील। Details of hybridization will come into picture. You guys can note these two things and हाँ इसको indicate कर सकते हो this। इनफैक्ट तुम लोग तीन डायग्राम अगर चाहो तो बना सकते हो, एक बीच में भी इसका बना सकते हो जिसमें इसका प्रोमोटेड पार्ट दिखा रहा है, ठीक है। एंड देन यू कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। Instead of two, you can put three, something like this. एक सेकंड कर लो। और ऐसे हाँ, and then you can do hybridization. See what I am trying to say is, ये लिखना पड़ेगा और +1 नहीं sp2, इसको sp2 s का हाँ बोलो ना। इसके पहले यहाँ पे अभी 2s1 हाँ लेकिन ये स्टेट स्टेबल नहीं होता है कुछ, इसको लिख, अच्छा 2s1 इसको वैसे लिख, वो लिखना चाह रहे हो। और उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, ठीक है। हाँ वेरी वेरी शॉर्ट वो रियली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जस्ट टू एक्सप्लेन you guys in a better manner, I'm trying to do this, ठीक है। इससे एक डायग्राम बनाओगे जिसमें you will show the promotion of electron from here to here, so it will become something like this। And then hybridization between these will take place। These things will hybridize to form 3sp2 hybridized orbitals and one pure orbital। This is sp2, this is sp2, this is sp2, ठीक है। अब ये जो है these are hybridized orbitals, ठीक है। अब ये वाला जो है स्टेट, वो ये वाला स्टेट है जिसकी आप बॉन्डिंग करा रहे हैं। इज इट ओके? वो 2s2 कहाँ पे? हाँ 2sp2, eq1 is going to be 2 bonding। Are you guys getting this point? हेलो सर मतलब ये तीनों का कैसे हाइब्रिडाइज करेगा? अब वो कैसे होता है वो बताता कैसे होता है और क्या क्या कंसिडरेशन है, क्या ओरिएंटेशन होगा, अलाइन किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें थोड़ी देर में आएंगी। जस्ट अभी ऐसे फिजिकली समझ लो, मतलब फिजिकली या
पेरिफेरली समझ लो कि ये दोनों मिल रहे हैं, इनके एनर्जीज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के बराबर एनर्जी के 3 ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक है, कैसे हो रहे हैं, दैट इज समथिंग दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस, क्योंकि ये सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा हो करके बैठा हुआ है एटम्स में, तो वी नो मोर अबाउट इट। एक्चुअली ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इटसेल्फ इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड एंगल्स और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए आया है, कोहेरेंसी जनरेट करने के लिए, यानी लॉजिक्स के साथ इसको मर्ज करने के लिए। वी हैव आल्सो गिवन इट द idea that okay, there is a definite minimization of potential energy which is taking place. ठीक है, equally spaced रहेंगे तो there will be minimum repulsion and therefore energy will automatically get minimized। और इसमें ये होता है, मतलब इसके अंदर में ये है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं, मतलब VBT ये अज्यूम करता है कि बॉन्ड के फॉर्मेशन के पहले ये एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, रियलिटी में क्या होता है, MOT बोलता है कि नहीं, पहले कुछ नहीं होता है। वंस द बॉन्डिंग स्टार्ट हैपनिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल्स खत्म हो जाते हैं, जो भी आए वो क्रश होकर के मिल गए, और मिलने के बाद एक नया ऑर्बिटल ऑटोमेटिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियाई जनरेट होता है। दैट इज व्हाट वी कॉल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड इट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हिच गेट्स ओरिएंटेड एज पर the rules of minimization of potential energy। हाँ, ये VBT में कौन है, हाँ खुला है, ओपन द डोर। Yes, back to discussion। So yes, hybridization and MOT। So basically hybridization अपने आप में एक hypothetical concept है which try to explain the structure of the molecule। ठीक है, और कैसे होता है थोड़ा सा डिटेल में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। पाई बॉन्ड है, प्योर पी ऑर्बिटल हमेशा, जो हाइब्रिडाइजेशन में पी नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज प्योर पी, और वो हमेशा पाई बॉन्ड्स बनाएगा। जैसे नीचे वाले में देखो, फिर से प्रमोशन हुआ, इस बार इथाइल में सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स, एक S का और एक P का पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, इन ऑर्डर टू जनरेट 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और बाकी के 2 ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर ये नॉन हाइब्रिडाइज्ड या फिर प्योर फॉर्म में। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं हमारे, दे आर गोइंग टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स। ठीक है, और पहला वाला ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज्ड हुआ दैट इज गोइंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, these are going to form, the hybridized orbitals will form sigma bond and non-hybridized are forming pi bonds। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे Z के along internuclear axis स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी है, तो इट इज गोइंग टू बी pz ऑर्बिटल जो S के साथ हाइब्रिडाइज करेगा। ठीक है, Z is going to mandatorily hybridize, क्योंकि Z के along मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होना है। ठीक है, यहाँ पर एक Z हाइब्रिडाइज कर रहा है और एक Z के अलावा कोई और भी X हाइब्रिडाइज कर रहा है या फिर Y हाइब्रिडाइज कर रहा है। ठीक है, अगर X हाइब्रिडाइज कर रहा है तो ये Y वाला खाली रहेगा, और Y अगर हाइब्रिडाइज कर रहा है तो X वाला खाली रहेगा। ठीक है, बट
जेड मैंडेटरली हाइब्रिडाइज कर रहा है until and unless stated otherwise. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो रहेगा आपका वो वाला ऑर्बिटल, उसके अलोंग ओरिएंटेड ऑर्बिटल विल मैंडेटरली पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. Anyway, that is again going to come after some time. तो ये उल्टा क्यों बनाना है? इसका उल्टा क्यों बनाना है? हाँ, that is understood. है? तो इसका साइन और इसके साइन में रिलेशन मतलब अगर ये नीचे आए तो इसको नहीं सकते. ये किसका दो अलग अलग कार्बन का बना रहे हो या सेम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन? पहला वाला क्या है? तो ये वाला ही बनाना यही वाला बना रहे हो ना, इसलिए ये वाला यहाँ पर आया, ये वाला ऐसे है तो ये उलट जाएगा, यहीं पे उलट जाएगा, या फिर हाइब्रिडाइजेशन में आने के बाद उलट जाएगा. ठीक है. और फिर ये ऊपर कौन सा? तो अगर ये नीचे आए तो उसके ऊपर तो इसको ऐसे किसको? ये सेकेंड वाले का तुम यहाँ पे बना रहे हो. सेकंड वाला ये है. हाँ, अगर ये जो हाइड्रोजन का है जो हाँ, ऊपर उसको आप उसको जाना हो. क्योंकि इन्वर्ट करेगा तो सारे इन्वर्ट करेंगे. सर ये मुझे नहीं समझा उसके बाद वाला. कौन सा? और ये C2H2 वाला. क्या नहीं समझा? सर ये मतलब कि नहीं सर ये नहीं C2H2 का. नहीं, वो यहाँ पर भी वही हो रहा है, बस दिखाया नहीं है मैंने. यहाँ पर और माइन्यूट जाकर के अंदर में मैंने दिखा दिया है उस चीज को. ठीक है. जो वहां पे हो रहा है C2H2 में वही चीज C2H4 में भी हो रहा है. ठीक है ना. बस दिखाया यहाँ पर है, दैट इज द ओनली थिंग. सी यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना कि ये नीचे नीचे हो गया है, दैट इज बिकॉज द पेयरिंग बिटवीन दीज टू आर टेकिंग प्लेस. ठीक है. और बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर दे विल अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट the spin of the electron in the orbitals are in opposite direction such that effective overlapping can take place. ठीक है. तो पहले वाले का अप स्पिन है एक का, तो इसका भी अप स्पिन रहेगा, ये अप स्पिन रहेंगे, ये भी अप स्पिन रहेंगे. ठीक है. पहले वाले का अगर एक अप स्पिन में मतलब ये पूरा सेट अप स्पिन है तो दूसरे वाले कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन्स डाउन स्पिन में चले जाएंगे, क्योंकि डाउन स्पिन में जाएंगे तभी इन दोनों का बॉन्डिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड. इज इट ओके? एंड दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन ओवर हियर आल्सो. इट्स नॉट लाइक इट विल नॉट हैपन ओवर हियर. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आई विल रीड्रॉ इट, डोंट वरी. What I can do is I can rub this out. First of all, there is going to be electron promotion. So what has happened? This has got promoted to here. Similarly, this will get promoted to here.
then hybridization will take place. सर लेकिन वो तो इन्वर्टेड हो ना. कहाँ पे inverted होगा? Inversion will take place only at time of bonding. वैसे ये सारे स्टेप अलग अलग नहीं हो रहे हैं, सारे एक साथ ही हो रहे हैं. मैं उनको सिंप्लीफाई करके एंड आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हो रहा है लेकिन अलग अलग. ठीक है, दिस इज sp2, sp2, sp2 और sp2, sp2, sp2. This is pure 2p, 2sp2, 2sp2, 2sp2. यहाँ पर भी 2sp2, 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 and this is 2. ठीक है. Then the next thing which will happen is now the bonding will start taking place, and when the bonding start taking place, now spin inversion will come into effect. ठीक है, ये अप स्पिन में रह जाएंगे और ये अप स्पिन में है तो नीचे वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स डाउन स्पिन में चले जाएंगे ऑटोमेटिक. वो एरो कैसे भी बनाओ, हाफ एरो फर्क नहीं पड़ता है या फुल एरो नीचे की तरफ बना तो फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, this is spin inversion. Spin inversion. Is it okay? This is promotion of electron. Promotion of US electron into 2p. Then this is getting hybridization. Actually ये दोनों साथ साथ में होते हैं. होता ये है पहले हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ ही वो प्रमोशन भी होता है. ऐसा नहीं होता है कि पहले प्रमोट हो गया और फिर हाइब्रिडाइज करेगा. These two steps takes place simultaneously and तीसरा वाला भी simultaneously ही होता है. ठीक है, ये spin inversion जो है that also takes place simultaneously only. They don't take place individually. It is just that to explain to you guys, I am making it divided into 3 parts and then the bonding will take place. ठीक है, अब bonding कैसे होएगा? एक पेयर के बीच में सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, इसका हाइड्रोजन के साथ में ये अप स्पिन है तो ये वाला हाइड्रोजन डाउन स्पिन में आकर के करेगा इसके साथ, और ये अप स्पिन है तो ये भी डाउन स्पिन में आकर के करेगा. ठीक है. अच्छा, इन हाइड्रोजन्स को डाउन स्पिन अप स्पिन में जाने के लिए स्पिन चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं, वो सिंगल स्पिन नहीं है.
सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उनको अप स्पिन डाउन स्पिन थोड़ी होना, वो एक स्पिन में है, तो दूसरा स्पिन एक्चुअली उसका इक्विवेलेंस है, राइट? फॉर इट देयर इज नो इशू। आपको जिस स्पिन में उसको शो करना है आप शो कर सकते हो, दैट इज अप टू योर विश, क्योंकि उसके पास एक ही स्पिन है। अगर मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसमें आपको शो करना है, शो कर। And here we will have pi bond. सर ये 1s1 मतलब कहाँ से आया? हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स भी रहेंगे ना। हाँ सर। ठीक है, is the picture clear now? यस सर। Oh, So that can explain anything about axis वाला हाँ, अब देखिए मेरा पॉइंट ये है कि अ, अगर मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है ना, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पर इन तीन पी ऑर्बिटल में से दो पी जो है हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है, तो एक मैंडेटरी पीजेड जाएगा, ठीक है? जिधर मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा वो वाला उसके अलोंग ओरिएंटेड ऑर्बिटल मैंडेटरी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है? उसके अलावा px एंड py दोनों बचते हैं, उसमें से कोई भी एक जा सकता है एज पर योर विल एंड चॉइस और कंस्ट्रेंट गिवन। इज इट ओके? तो जो हाइब्रिडाइज कर रहा है वो एक जेड है, जैसे इस केस में दो p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, तो इसमें से एक मैंडेटरी जेड वाला है, दूसरा वाला p कौन सा है वी डोंट नो, दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, ठीक है? जैसे ये बोला जाता है कि y ऑर्बिटल सॉरी पाई बॉन्ड जो है दैट हैज बीन फॉर्म्ड इन z एंड x प्लेन, ठीक है? तो z x प्लेन में अगर पाई और ये बन रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा पार्टिसिपेट किया? py वाला करेगा, क्योंकि z बोले या x बोले? हाँ zx में है ना, हाँ ठीक है। तो zx प्लेन में अगर मेरा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, that means x orbital was participating, px was participating in pi bond formation and px was participating in pi bond formation, and hence py is the one which along with pz has participated in hybridization. yz में अगर बन रहा है आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है yz प्लेन में है, इसका मतलब py is participating in pi bond formation whereas x has contributed itself into hybridization. तो वो जो 2s होता है वो उस z पे वो तो हर तरफ रहता है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हर तरफ है, दैट्स स्फेरिकल, डायरेक्शनलेस है, s ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनलेस, ठीक है? और वो डायरेक्शन डिसाइड करने में कुछ हेल्प भी नहीं करते हैं, डायरेक्शन जो होते हैं वो p के ओरिएंटेशन के हिसाब से डिसाइड होते हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने में, दैट इज अ कांसेप्ट व्हिच वी विल लर्न इन they are going to see in hybridization. सर आइडेंटिटी फिर pz वाला क्या क्या? सर वो pz वाला पॉइंट नहीं समझा। pz वाला पॉइंट नहीं समझा? देखो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ
कि अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है ना, तो पीजेड ऑर्बिटल जो है वो मैंडेटरली हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, क्योंकि तभी एक ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और फिर मेरा बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड जो है दैट विल फॉर्म अलोंग जेड ऑर्बिटल, सॉरी जेड एक्सिस, ठीक है। अगर जेड ऑर्बिटल नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो कोई भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मेरा जेड एक्सिस के अलॉन्ग नहीं रहेगा, फिर सिग्मा बॉन्ड मेरा जेड एक्सिस के अलॉन्ग नहीं बन पाएगा। इज इट ओके? यस, अंडरस्टूड। ठीक। सर बेंजीन के लिए क्या लिखा? बेंजीन नहीं, बेंजाइन, इट्स बेंजाइन। इसके लिए आप लोग नोट कर लो, ओनली एक्सेप्शन, only exception where hybridized orbital participate in pi bond form. Noted? Let us come down to ethyne. इसमें भी वो सारे स्टेप्स हो रहे हैं। पहला स्टेप हो रहा है प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन हाइब्रिडाइजेशन। इस पर हाइब्रिडाइजेशन में दो ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन इन्वर्सन ऑफ स्पिन इज टेकिंग प्लेस। तो और ये दोनों चीजें, तीनों चीजें क्लब करके एक ही जगह पर दिखा दिया है मैंने, एंड डायरेक्टली बॉन्डिंग बता दी। हाँ, is this okay? Are we able to understand it? सर वो 2p वाला सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कौन सा 2p? ये वाले नहीं, ग्रीन वाले सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, एंड ये वाले पाई बॉन्ड है। सर ये तो इन्वर्टेड स्पिन बॉन्ड ना, तो फिर पाई बॉन्ड कैसे? क्यों इन्वर्टेड स्पिन पाई बॉन्ड में? पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड किसी के लिए भी इन्वर्टेड नहीं चाहिए, दो अलग अलग स्पिन के इलेक्ट्रॉन ही इंटरेक्ट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेट, सिग्मा हो या पाई हो। ऊपर में भी तो ये इन्वर्टेड वाले ही पाई फॉर्म कर रहे हैं, यस सर। ठीक है। और टेक्निकली वैसे जब तक ना पूछा जाए तब तक वो अपस्ट्रीम में भी शो करते हैं हम ना, और पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो हम अज्यूम, हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि दैट इज इन अपोजिट स्पिन, ठीक है। Until and unless specifically asked which one of these configuration or bonding patterns are right, ठीक है, तब तक you don't have to deep dive into it. Okay. Now ये एक मॉलिक्यूल था, कार्बन डाइऑक्साइड पे भी हम लोगों ने देखा था। कौन सा वाला? इथाइन। कहाँ क्या हुआ? हाँ, सब एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे।
तो यहाँ पे दो वाले हाँ, दो प्योर फॉर्म में रह गए और एक एस और एक भी हाइब्रिडाइज बस एस आगे खाली एस और क्योंकि सेकेंड और पी क्यू एन के SpA2S, ठीक है। एक पी पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में तो sp बनेगा, दो पी करेंगे तो sp2 बनेगा, तीन पी तीनों पी करने लगेंगे इट विल बी sp3। Let us come to these two. Carbon, double bond carbon, double bond carbon. Then we have these two hydrogens. Are these two hydrogens in same plane or different plane? That is the question. How are we going to answer it? यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन, ये चारों हाइड्रोजन जो है ये सारे के सारे एक ही प्लेन में रहते हैं, ठीक है। क्यों रहेंगे एक प्लेन में? Z ऑर्बिटल के अलोंग, PZ के अलोंग अगर Z और एक्सिस के अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो ये दोनों जो है बाकी के जो रहेंगे दे आर गोइंग टू बी ओरिएंटेड एट 120 डिग्री एंड दे विल बी इन सेम प्लेन। तीन चीजें हमेशा, मतलब दो चीजें हमेशा एक ही प्लेन में रह सकती हैं। यहाँ पर ये दोनों एक प्लेन में रहते हैं और ये दोनों भी उसी प्लेन में रहते हैं क्योंकि सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन से ये बने होते हैं। एक एस होता है, एक जेड होता है और पहले वाले में अगर एक्स यूज हो रहा है तो दूसरे वाले में भी एक्स ही यूज होगा क्योंकि सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन से ये दोनों बने हुए हैं, दोनों के ये तो they are going to interact with hydrogens which will lie in same plane, ठीक है। when we come at this system something or different happens, ठीक है। यहाँ पर अगेन जैसे ऑक्सीजन वाला समझाया था मैंने, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग के टाइम पर वही चीज यहाँ पर भी होता है, ठीक है। जैसे इस कार्बन का एक एस ऑर्बिटल, एक पीजेड और मान लो पीएक्स, ये तीन ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो Z इधर हो गया, ये हो गया पीएक्स, सॉरी पीएक्स और एक और तीन बनेंगे तो एक जेड के अलॉन्ग सिग्मा फॉर्म हो रहा है और दो और तीसरा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी, ये वाला जो है ये मैंडेटरी पीवाई और पीवाई के बीच की पाई बॉन्डिंग होगी। तो इज दैट ओके? हाँ बोलिए। हाँ सर वो जो पी सेट है वो हाइब्रिडाइजेशन का एक होगा और दूसरा एक्स है वो भी हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, तो दो पी ऑर्बिटल चाहिए मुझे और एक एस ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल मिले। हम ये तो यहाँ पे एस को एस को भी कर रहे थे हम लोग ना हाइब्रिडाइज, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में ना। हाँ वो वाला। हाँ, तो इस कार्बन का नहीं करेगा? करेगा ना। दिस बॉन्ड इज अलोंग वाई एक्सिस पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इस कार्बन के ऊपर में अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि only two orbitals are participating in hybridization. One is S and the other has to be mandatorily Z, ठीक है। Z क्यों? क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है, therefore Z has to mandatorily participate in this bond formation. Is it okay?
ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? Yes, sir. ओके तो ये वाला Z होगा C और C पहले हाँ। वाले C और C के बीच वाला ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है pz वाला और ये भी pz वाला रहेगा, ठीक है। आप बोलोगे दो जेड यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है, तो एक ये एक्चुअली हाइब्रिडाइज जेड है, एस पी जेड एंड पी एक्स के कॉम्बिनेशन से 3 ऑर्बिटल्स बने, ठीक है, वो वाला ऑर्बिटल, और यहाँ पर भी एस और पीजेड के कॉम्बिनेशन से 2 ऑर्बिटल्स बन गए, इट्स नॉट वन सिंगल पीजेड। पीजेड सिर्फ डायरेक्शनल एनालिसिस के लिए, बट ऑर्बिटल्स दो है वहां। We call it sp hybridized and sp hybridized orbital, spz and spz, ठीक है। तो दो ऑर्बिटल्स मिल गए यहाँ पर, इसका प्योर py ऑलरेडी इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, सॉरी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये वाला बॉन्ड जो होगा इट हैज टू बी मैंडेटरी px पाई बॉन्ड। Are we getting this? All of you? Sir, that hybridization point I didn't understood that. PZ, वाला. देखिए इस कार्बन में 3 ऑर्बिटल s pz एंड px, एक s ऑर्बिटल, एक pz ऑर्बिटल, एक px ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो करके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, जो कि एक इस तरफ और एक इस तरफ ओरिएंटेड, ठीक है। यहाँ पर दो ही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s ऑर्बिटल और एक pz ऑर्बिटल। तो वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? कहाँ पर, इसके वाले में या इसके वाले में? पहले पहले वाले C पर दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज sp2 क्योंकि दो p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और इसके वाले के इट वी आर गोइंग टू कॉल इट sp क्योंकि एक ही p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। हाँ, अरे अभी बोल रहा हूँ समझेगा कैसे, अभी पूरी चीज पता ही नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ कि है एक इन्वॉल्व, तो एक को मानो थोड़ी देर के लिए, फिर मतलब आपको ये भी बताऊंगा कि कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये डिसाइड कैसे करोगे, विल कम टू नो अबाउट इट। हाइब्रिडाइजेशन वाला पढ़ाऊंगा तो आई विल डिसाइड फॉर एवरीथिंग कि कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये काउंट कैसे करोगे, गेटिंग द पॉइंट। सो डोंट बॉदर अबाउट इट कि वो कैसे हो रहा है, इसमें कैसे एक हो रहा है, उसमें कैसे दो हो रहा है, वो सारी चीजें आप समझोगे, गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड डू, ठीक है। अभी मेरा मेजर कंसर्न जो है वो ये है कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, उससे डायरेक्शनैलिटी इन बॉन्ड्स कैसे डेवलप हो रही है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड, एंड वो डायरेक्शनैलिटी इन बॉन्ड्स कैसे शेप ऑफ मॉलिक्यूल को अल्टर कर रहा है। इज इट ओके? जैसे पिछला वाला मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड होने के वजह से प्लेनर है, इथीन जो है ये प्लेनर है, ठीक है, क्योंकि सारे हाइड्रोजन एटम सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये वाला डबल बॉन्ड ही है, लेकिन ये प्लेनर नहीं है, दिस इज नॉट प्लेनर मॉलिक्यूल। दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दोनों इस प्लेन में रहते हैं और दूसरा वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जो होता है वो इस प्लेन में रहता है, ऐसे रहता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। हर्षित, Yes, sir. इस कार्बन के मिडिल वाले कार्बन के दो ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन से कर रहे हैं? एक s ऑर्बिटल कर रहे हैं और दूसरा pz कर रहे हैं मैंडेटरली। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये बॉन्ड एक्सिस को z एक्सिस के अलोंग ओरिएंट होना है, या दूसरा चीज हम रीजन ये बोल सकते हैं कि द मॉलिक्यूल इज प्लेनर, sorry, the molecule is straight, it's a straight line molecule, ठीक है। ये हमको पता होता है, या फिर नहीं पता है तो z एक्सिस के हिसाब से हम बेसिकली ले सकते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, दो को पार्टिसिपेट करना है तो इट हैज टू बी मैंडेटरी z, इट कैन नॉट बी एनीथिंग,
else. It cannot be X or Y. ठीक है, तो इस कार्बन का अगर Z और S इन्वॉल्व हुआ तो बचेगा एक P और एक सॉरी Y और एक X. Y प्योर फॉर्म में है जो ऑलरेडी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर चुका है. द ओनली लेफ्ट थिंग इज X. ठीक है, तो इसका X इसके X के साथ पार्टिसिपेट किया पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में. ठीक है, इसका px इसके px के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म किया. तो इस कार्बन के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल्स बच गए हाइब्रिडाइजेशन के लिए? pz, py एंड s. ठीक है, pz, py एंड s. लेफ्ट और राइट वाला कार्बन का स्केल नहीं है ना, इसमें s pz px और इसमें कौन सा है s py एंड pz. ठीक है, Z वाले के वजह से ये वाला बॉन्ड हमको स्ट्रेट लाइन बॉन्ड मिल रहा है. ठीक है, बट X जो है वो Y के परपेंडिकुलर रहेगा. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? एंड इसके वजह से दूसरा वाला ये वाला कार्बन जो है इसके हाइड्रोजन जो है वो परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाते हैं इस तरीके से. इज दिस ओके? हेलो, am I audible? Yes. Am I understood? Yes, sir. Okay. Fine. ओके, सो देखो पहले इथीन में कितने डबल बॉन्ड थे कार्बन कार्बन के बीच में? एक डबल बॉन्ड था. इस कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड है. ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड पे इट वाज प्लेनर. दो डबल बॉन्ड्स जब आए कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड इट बिकेम नॉन प्लेनर. ठीक है, तीन डबल बॉन्ड्स पे हम फिर से देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी प्लेनर. ठीक है, बाय सेम प्रोपोजिशन जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं. यहाँ पर अगर हम देख, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, ठीक. जैसे इस कार्बन में फिर से अगर हम अज्यूम करते हैं कि S, Py and Pz are participating in hybridization, तो ये पाई बॉन्ड जो होगा वो Px Px के बीच में होगा. ठीक है, Px पाई बॉन्ड में यूज है और यहाँ पर क्या होगा S and Pz ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा. यहाँ पर भी S and Pz हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा. ठीक है, ये वाला बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा? पाई Py Py. ठीक है, अब पाई Py Py हो गया तो ये वाला फिर से किस में बनेगा? पाई Px Px बनेगा. ठीक है ना? हाँ, sir. और लास्ट वाला कार्बन जो होगा उसका फिर से S, Py एंड Pz जो होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व रहेंगे. एंड देयरफॉर इस बार फिर से दोनों हाइड्रोजन वाले बॉन्ड जो होंगे वो सेम प्लेन में आ जाएंगे क्योंकि सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं. इज दैट ओके? वी अंडरस्टूड दिस थिंग. ये बात समझ में आ गई ना?
Yes, sir. Okay, good. So can we proceed further? Yes. Okay. Srishti, Srishti, आपको समझ में आ रहा है बच्चा ना? ओके, ठीक है. नाउ थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल SO4 2 माइनस, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू सी द बॉन्डिंग पैटर्न इन इट. इट हैज बीन इलस्ट्रेटेड ओवर हियर. सल्फर के पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसका 3d जो है वो पूरी तरह से खाली है. Now what we did is सबसे पहले hybridization and promotion होगा इलेक्ट्रॉन्स का. Is it okay? Hybridization and promotion of electron. हाइब्रिडाइजेशन किसके किसके बीच में हो रहा है? एक s और 3p हाइब्रिडाइज कर रहे हैं. 2 d ऑर्बिटल जो है वो प्योर फॉर्म में है. They are going to participate in pi bond formation with oxygen atoms. ठीक है, बोलिए. आपने बोला था कि वो जो तीन में डबल बॉन्ड होता है, डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीन में चला जाता है. डी में चला जाएगा. तो यहाँ हाँ गया ना, और यहाँ पे ठीक है. हेलो, यस यस. ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड. ऑक्सीजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड फॉर्म किया. दूसरे ऑक्सीजन का भी एक अनपेयर्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा अनपेयर्ड पाई बॉन्ड फॉर्म किया. दूसरे वाले ऑक्सीजन के एकलौता जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. क्यों एकलौता अनपेयर्ड है? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है, जिसकी वजह से वो O माइनस ऑक्साइड आयन बन गया है, ऑक्साइड बन गया है. एक अनपेयर्ड जो बचा इनवर्स स्पिन में है, इनवर्स स्पिन में है एम्पेयर बॉन्ड. ठीक है, तो दिस इज हाउ द बॉन्डिंग पैटर्न लुक लाइक. इज दैट ओके? कैन वी टेक इट डाउन? इसमें कोई चीज जो समझ में नहीं आ रही हो, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ p pi and d pi. तो ऑक्सीजन में क्यों इन्वर्जन ऑफ स्पिन हो रहा है? ऑक्सीजन में इन्वर्सन ऑफ स्पिन ये हो रहा है कि बिना इन्वर्सन के वो फॉर्म नहीं करेगा. इन्वर्स स्पिन में ही वो फॉर्म कर सकता है ना बॉन्ड. अगर सर्कल का तो हाइब्रिड है क्या क्या सर. वो sp3 और 3d3 सॉरी 3d में क्यों नहीं हो रहा है? अरे किसी एक को ही होना है ना, दोनों क्यों होगा? सल्फर वाला जो है दैट इज मेंटेनिंग इट्स हाइब्रिड, उसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो अप स्पिन में है, तो ऑक्सीजन वाला डाउन स्पिन में आकर के उसके साथ इंटरेक्ट करेगा ना. या फिर ऑक्सीजन वाला अप स्पिन में है तो उसको डाउन स्पिन में लाना पड़ेगा आपको, तो वो आएगा डाउन स्पिन में, तो सारे के सारे एक साथ डाउन स्पिन में आएंगे, या सारे के सारे एक साथ अप स्पिन में रहेंगे. बात समझ में आ रही है? हाँ सर. सर और वो डी में ऑर्बिटल में क्यों दो इलेक्ट्रॉन गए फिर?
प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ हाइब्रिडाइजेशन पहले हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ। हाँ, ये प्रमोशन वाला शो कर रहे हो ना? हाँ, इसके बाद हाइब्रिडाइज वाला। हाँ, बट वो क्यूमुलेटिव स्टेप की। हाँ, तो इसके बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। हाँ, ये सर वो वाला पी में ना जाके डी में क्यों गया? क्या क्या सॉरी क्या बोल रहे हो वो? सर वो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पी में ना होकर के डी में क्यों गया? क्योंकि डी ही खाली है ना, पी खाली कहाँ है पूरी तरह से? हर पी में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो है ही ना, तो दूसरा वाला प्रमोट होकर के पी में क्यों आएगा? ठीक है, बेसिकली जहां खाली रहेंगी चीजें वहीं पर जाएंगे ना। इट्स लाइक कभी शादी वादी में कहीं गए हो, one room is fully occupied, where would you like to sit, in that fully occupied room or an empty room? This is relatively empty. Always prefer to go and sit into the relatively empty room so that you can get more space. ठीक है? Same is here also. While S will come to P, there is already somebody there. It will go to D, which is empty or vacuum. ठीक है? अब तुम क्या बोल रहे थे? अब बोल रहे थे। मैं बोल रहा था कि ये से पढ़ के हम लोग को पता चलता है कि हाँ क्या होगा। हाँ, और ये वही रियलाइज कराने के लिए ही ये डायग्राम बताया जा रहा है। ठीक है, ऑर्बिटल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग आपको माइक्रोस्कोपिक अंडरस्टैंडिंग मिले कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप, कौन सा ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, किस एटम का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इंटरलिंकिंग आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, या बीवीटी के थ्रू हम ट्राई करते हैं एस्टैब्लिश। ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लो, डी बाई के। वैसे तो ऊपर ही लिख चुके हैं हम लोग, SO4 वाला जो एग्जांपल SO4 2 माइनस दैट इज डी बाई। यहाँ पर PO4 का भी एग्जांपल लिया है मैंने, PO4 3 माइनस। इसमें की जो होता है वो यही है, फ्री डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स with p orbital unpaired electrons to make pi bond, as in case of SO4 2 minus। तो ये पी बाय तो उसके बाद भी पी बाय डी ये वाला भी एग्जांपल है p बाई डी बाई, ठीक है। और अगला एग्जांपल p बाई डी बाई का है फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन।
एक्चुअली ये वर्ड फ्री मत लिखो, अनपेयर्ड लिखो. This should be unpaired, not free. Free is not the right word for this. Yeah. It's unpaired d electron. Paired d orbital electrons interact with p orbital unpaired electron to make a pi bond. As in case of isotope, it's unpaired d orbital electrons. Noted this down. Yes, sir. दिख रहा है, SO3 का भी नोट कर लो. इसमें एक्चुअली SO3 के अंदर में we have mix of pi bonds. We have p pi as well as d pi. दो p pi होते हैं और एक p d pi होता है. ठीक है. p d pi. There is only one pi bond, that is p and d pi. SO3 में तीन pi bonds हैं और तीन दोनों मतलब उसमें दो वैरायटीज है, एक p pi है और दूसरा d p है. ठीक है. अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ये होता है कि एनर्जी ऑफ दीज थ्री pi bonds has to be different, right? That is what we should expect. बट एनर्जी तीनों पाई बॉन्ड का अगर इक्वल आए तो इसका मतलब है कि कुछ तो लोचा है. There has to be some लोचा and that लोचा has to be well explained. अरे अगर तीनों की एनर्जी बराबर आ गई मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना. मतलब हम जो बोल रहे हैं और जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है उसमें डिफरेंसेस हैं. नहीं, एक p पाई है दो p d पाई है, तो इन दोनों की एनर्जी बराबर बट इसकी एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए. ठीक है ना.
that is expected based on VBT or hybridization concept even. Are we getting this point, everyone? हेलो, Yes. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? तो प्रॉब्लम हाँ, का सॉल्यूशन भी हमें चाहिए होगा ना। रियलिटी अगर ये बोलती है या एक्सपेरिमेंटल डेटा मेरा ये बोलता है कि देयर हैज टू बी इक्वल एनर्जी pi bonds, all the three pi bonds are equal energy, that has to be theoretically well explained. Now this is where resonance come into picture. ठीक है, resonance will explain this behavior, why it is happening. पहले वाला फीडबैक एक्चुअली सेम होना चाहिए, डिफरेंट यहाँ के हिसाब से तो डिफरेंट ही है ना। सेम होना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बोलता है कि हम बॉन्ड्स की एनर्जी सेम है तीनों, राइट? और एक वाला तो पी पाई है, हाँ दूसरा पी पाई डी पाई है, हाँ, उससे कोई difference रियलिटी में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हाँ, पी पाई बॉन्ड और पी पाई डी पाई बॉन्ड के एनर्जी में डिफरेंस होता है। होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए। थ्योरेटिकली हम देखें बीबीटी के बेसिस पर तो होना चाहिए। रियलिटी ये है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमने ये पूरा ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट डेवलप किया, इलेक्ट्रॉन को वेव बनाया, उससे ऑर्बिटल डेवलप किया, ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कराई, वो डायरेक्शनलिटी ऑफ बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, शेप को एक्सप्लेन कर पा रहा है, फिर यहाँ पर ये छोटी चीज में वो लॉस कहाँ हो जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स सम मोर माइन्यूट मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्स टू बी डन, ठीक है। नॉट ओनली दैट, देयर वर अदर थिंग्स आल्सो which has to be taken care of, ठीक है। मतलब रेजोनेंस सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, और भी काफी डिस्क्रिपेंसीज को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होता है, and therefore that came into picture, ठीक है। However, this we can explain in terms of resonance. What we say is none of these bonds are permanent bonds. ये वाला एक बार यहाँ पे बना हुआ है, ये टूटता है, ये वाला शिफ्ट होता है यहाँ पे, फिर थोड़ी देर बाद ये टूटता है, ये वाला इसके साथ बॉन्ड करेगा, जब ये वाला इसके साथ कर रहा है तो ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे कर रहा होगा बॉन्ड। तो बारी बारी से तीनों इलेक्ट्रॉन्स, एक बार ये इसके साथ, फिर उसके बाद ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ठीक है। और ये वाला भी इसके साथ, फिर इसके साथ, जब यहां से ब्रेक होगा तो इसके साथ बनेगा, फिर इसके साथ बनेगा। तो सब बेसिकली अल्टरनेट कर रहे हैं। तो चूंकि अल्टरनेट कर रहे हैं तो अब एनर्जी जो आएगी वो एवरेज हो जाएगी, एंड ये एवरेज एनर्जी शो करते हैं। बॉन्ड ब्रेक, हाँ, बॉन्ड ब्रेक फॉर्म होते रहते हैं, अल्टरेशन होते रहता है। तो इसमें स्टेबिलिटी कैसे होगी? अरे ब्रेक फॉर्म होना वो हम प्रोसेस के टर्म्स में डिस्कस कर रहे हैं, रियलिटी में नहीं होगा। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से उधर शिफ्ट होते रहते हैं। हाँ, बिकॉज ऑफ वेव मोशन, बॉन्डेड फॉर्म में भी ये वेव मोशन की तरह बिहेव करते रहता है, एंड इट कीप ऑसिलेटिंग बिटवीन। वैसे वेव फॉर्म में याद करा तो फीडबैक हाँ, हो जाएगा। हाँ थोड़ा, हाँ बिल्कुल, ये पार्टिकल फॉर्म में जब हम इसको ये करने रखते हैं तो वो फिर रियलाइज होगा कि अरे ब्रेक होगा नहीं तो फॉर्म कैसे होगा, ठीक है। बट वेव फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो शिफ्टिंग ऑफ वेव इज पॉसिबल। एक जगह से दूसरे जगह वो शिफ्ट कर रहा है, फिर तीसरी जगह जा रहा है, फिर घूम के पहली जगह आ रहा है। जब पहली जगह से वो दूसरी जगह जा रहा है तो पहला वाला ऑक्यूपाइड, सॉरी एम्प्टी हो रहा है, तो उसको कोई अगला वाला जो है वो फिलअप कर रहा है। सो इट इज जस्ट rotation of electron या movement of electron density in between these p orbital pairs. Is that okay? That is, I mean, in very short, that is what resonance is going to do for us. Am I clear?
सर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते सर, पर वो वो भी मतलब CSP2 कौन से बनेंगे, वो भी रूल्स होते हैं? हाइब्रिड कौन से बनेंगे, रूल होते हैं, हाँ होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं. You will get to know all them, all of them. There is definitely something which guides. So itu CSP2 Hmm. CSP so Hmm. So ये electronic configuration. This is going to be 3S. तो वो ऐसे कभी हो सकते हैं कि वो अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का भी कंसीडर नहीं नहीं नहीं, that's impossible. सर इस केस में 3sp3 क्यों नहीं आएगा? नहीं आ रहा है, जरूरत नहीं है उसकी. ठीक है. उसका कोई रीजन नहीं है. देयर इज नो रीजन. वो क्यों नहीं आ रहा है, हाँ? इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन. वो सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए है कि ऐसा स्ट्रक्चर ना बन के ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है. ठीक है. Hybridization has very limited application. It is just there to explain कि एक टाइप का expected structure होना चाहिए on the basis of normal orbital orientation. बट वो नहीं फॉर्म करके कोई दूसरा वाला क्यों फॉर्म हो रहा है. ठीक है. अब हम ये बोलें कि हाइब्रिडाइजेशन में ये वाला और ये वाला क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. इसके लिए सिंपल सा एक्सप्लेनेशन यही है कि स्ट्रक्चर चूंकि नहीं फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम लॉजिक में उस चीज को काउंट नहीं कर रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इज दैट ओके? यस सर. सी, अगर आप अपने किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट देते हो, ठीक है ना, या सपोर्टिंग आर्गुमेंट क्रिएट करते हो, तो अब उस सपोर्टिंग आर्गुमेंट की वैलिडिटी के लिए सारी चीजें बाकी प्रूव नहीं करते चलते हो कि वो क्यों नहीं होगा बाकी जगह पे एप्लीकेबल. दैट इज जस्ट अ स्मॉल सपोर्टिव थिंग which is helping you to explain the structures, and that too in view of VBT only. ठीक है. बाकी थियरीज में हम जाएंगे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. यू डोंट रिक्वायर हाइब्रिडाइजेशन व्हेन यू आर डीलिंग इनटू एमओ. उससे स्ट्रक्चर हम मुझे एक्सप्लेन करना है, तो आई डोंट रिक्वायर बीबीटी सॉरी हाइब्रिडाइजेशन एट ऑल. इज इट ओके? तो यहाँ पे वो कौन सा वो ये वाला सारे प्लेन नहीं है. ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, एक जेड वाला और एक एक्स वाला या पी वाला कोई एक है. ठीक है. तो तीन ऑर्बिटल होंगे, एक एस का, एक पी जेड और एक पी एक्स या पी वाई में से कोई एक, और ये तीनों मिला करके तीन ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिडाइज, और वो तीनों मैक्सिमम सेपरेशन के लिए 120 डिग्री पर अपने से ओरिएंटेड. ठीक है. बॉन्ड एंगल तीनों के बीच में 120 डिग्री रहेगी, और तीन सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे, एंड फिर उसके बाद पाई ओवर. इज इट ओके? यस सर. फाइन. आई थिंक ये sp3 को हटा देता हूँ. क्रिएटिंग कंफ्यूजन क्यों नहीं हो रहा है. एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन में कांट एक्सप्लेन कि इसका तीन क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है. हाँ, अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो आप खाली यही एक्सप्लेन कर सकते हैं, करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बोलते हैं, बट
बहुत ज्यादा वैलिड मुझे वो लॉजिक लगता नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं सपोर्ट कर रहा है, इसलिए 3 ऑर्बिटल नहीं भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं. दैट इज हाउ वी एक्सप्लेन इन सॉफ्ट मॉडर्न सेंस. Last example is, I mean, we have certain things called d pi overlapping. ये जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस में यूज होते हैं. पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते टाइम या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर के अंदर में इस बॉन्ड के बारे में विल कम टू डील इन डिटेल. डी पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में यूज करते हैं हम लोग जनरली क्या मतलब हर जगह पे यही वहीं पे यूज होता है डी पाई बॉन्डिंग. तो वी विल डिस्कस दिस ओवर देयर. ठीक है, अभी के लिए हम ज्यादा नहीं करते हैं. एग्जाम्पल जो है वो नोट डाउन कर लो. एक दो ये काफी इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है, विल्किंसन कैटलिस्ट. पाई इज बेंजीन. ठीक है, बेंजीन को पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या पीएच से भी रिप्रेजेंट करते हैं. P is phosphorus. It is a rhodium-based catalyst used for hydrogenation of alkenes. Sorry, alkynes. Delta overlapping, that is again a thing which is used to explain bonding in complex compounds. Not so usually found in normal S block and P block compounds. कौन सा कैटलिस्ट क्या Wilkinson. It is not readable. I'll rewrite it. The hydrogenation difference. Wilkinson's catalyst. हाँ, ये हाइड्रोजनेशन करता है. नहीं, ये करवाता है. अल्काइंस को हाइड्रोजनेट कराता है टू द लेवल ऑफ अल्कीन, पार्शियल हाइड्रोजनेशन. ठीक है, अगर हाइड्रोजन वगैरह के साथ उसको डायरेक्टली रिएक्ट कराते हैं तो अल्कीन्स को अल्केन कन्वर्ट करने के टाइम पर यूज करते हैं कैटलिस्ट वगैरह को, उनके साथ अल्काइन को रिएक्ट कर देंगे तो वो सीधे सीधे बन जाता है तुम्हारा ये अल्केन. जैसे प्रोपाइन या इथाइन को हम डायरेक्टली निकल और हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे तो दैट इज गोइंग टू गिव अस इथेन. ठीक है, अगर अल्काइन यानी इथाइन से इथीन बनाना है, मुझे पार्शियल हाइड्रोजनेट करना है, तो इस तरह की कुछ चीजें हमको लेनी पड़ती हैं. These are used for partial hydrogenation. Next one, delta overlapping.
तो आप ऐसे वन एग्जैक्टली, वन इज ओवर द अदर, ओवरलैप्स द अदर। अच्छा, आप लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा, केमिकल बॉन्डिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, ये चैप्टर एनसीईआरटी से एमओटी जहां से चालू हो रहा है ना, उसके पहले तक की सारी चीजें आप पढ़ने के लिए थोड़े से कैपेबल हो गए। हाँ, हाँ थोड़े से, मतलब ऐसा है कि थोड़ी सी मेहनत करोगे तो फिर सारी चीजें समझ जाओगे, तो इसलिए कैपेबल हो गए। ठीक है, और कुछ एक चीजें नहीं समझ में आएंगी, रेजोनेंस वगैरह वाली चीजें अगर हैं पहले, तो मुझे ध्यान नहीं है कि पहले दिया हुआ है कि बाद में दिया हुआ है, कि दिया भी नहीं हुआ है बाद में। हाँ ठीक है, अगर दिया हुआ है तो वो सिर्फ नहीं समझ में आएगा, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट यू शुड रीड टिल एमओटी के पहले तक जो भी चीजें दी हुई है। एक वेस्पर थ्योरी भी है, वहां तक भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो जहां तक पढ़ सकते हो एमओटी के पहले तक की सारी चीजें आप जहां तक पढ़ सकते हो पढ़ लेना। कल के लेक्चर के बाद यू विल बिकम फुल्ली एलिजिबल टू रीड इट टिल एमओटी, एक्सेप्ट रेजोनेंस। रेजोनेंस वाला कल नहीं होगा, वो परसों के लेक्चर में शायद होगा, वैसे पर बताने के बाद। So that's your homework. Reading it properly, finding difficulties, points of difficulties and raising it before me so that I can understand क्या क्या समझा आप लोगों को, क्या क्या नहीं समझा। जो नहीं पढ़ाया रहूंगा वो फिर मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को, और जो पढ़ा चुका हूँ मुझे लगेगा कि हाँ ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए थी, तो वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। बट रीडिंग वर्क हैज टू बी डन, लाइक वो वीकेंड्स में कर ही लेना, कल और परसों के बीच में। तो मतलब हम लोग को संडे तक सारा करना ना, एमओटी तक। एमओटी के पहले तक, हाँ। ओके। Yes, these are a few small questions. Which of the following overlapping are possible? Classify them into positive, negative, and zero overlapping. Mention type of bond form, assuming x-axis as internuclear axis. X-axis is internuclear axis, not z-axis. ठीक है? तो एस क्या है? S is s orbital. ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल के मिलने से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होएगा? बॉन्ड फॉर्म होएगा कि नहीं होएगा, सबसे पहले ये जज करना है। ठीक है, अगर फॉर्म हो रहा है तो किस टाइप का? वो एकदम पहले किया था वो है। हाँ वो सारी चीजें हैं, तो सारी ही देख लो, क्वेश्चन वही है। अच्छा करो। ओवरलैपिंग किस सर टाइप पहला की है? वाला बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, इस ओरिएंटेशन में फॉर्म होगा, इस ओरिएंटेशन में फॉर्म नहीं होगा। ये होगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, और यहाँ पर तो हो ही नहीं रहा है। अच्छा, सिर्फ इसी के बेसिस पर नहीं, ये भी है, दिस इज देयर आल्सो, वो जीरो हो जाएगा। हाँ। एस और पी वाई के बीच में कैसा होगा? If x axis is internuclear axis, S and py में कोई बॉन्ड फॉर्म होगा? नहीं होगा। नहीं। नो सर। S and pz में, ये एक्चुअली क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये है आंसर का ही पार्ट। एक ओरिएंटेशन में हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसी भी ओरिएंटेशन में नहीं। ठीक है, अगर x इज अ न्यूक्लियर एक्सिस तो py और s के बीच में कभी कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, s और pz के बीच में कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा, बिकॉज दे आर डूइंग जीरो ओवरलैप। ठीक है, s और s के बीच में
Now here you have to see that पॉजिटिव दोनों हो सकता है। क्या पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। एस ऑर्बिटल ही है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, व्हाई इट इज नेगेटिव ओवरलैपिंग। हाँ सर। क्यों है, हाँ नहीं क्यों है, सर क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है नहीं है। You have s orbital overlapping with s orbital is in this manner, is it possible or not? वो दो डॉट जो बनाए हुए हैं वो क्या है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस है। तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है नहीं है, नहीं है, क्यों। सर है पॉजिटिव। नेगेटिव ओवरलैप। हाँ क्यों निगेटिव ओवरलैप है, वो तो लिखा ही हुआ है निगेटिव ओवरलैप, बट क्यों। चलो पहले एक काम करो, तुम लोग सारे क्वेश्चन लिख लो बिना आंसर के, चीटिंग मत करना, ठीक है ना। इधर वाले क्वेश्चन खाली ड्राइंग बना लो। सर वो बड़ा हाँ सब लिखना है, ये बड़ा छोटा सब लिखो, नोट करो। और फिर पुराना जो पूरा थियरी लिखा है 12 13 14 पॉइंट्स का, उन सबके प्रीटेक्स्ट में इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है ना। डोंट डू हवाबाजी, एक भी सॉल्व नहीं होगा सारा गलत करके आओगे, एक भी आते आते फिर वो आ करते रहोगे। ये था सर। नोट डाउन द क्वेश्चन, डोंट नोट द आंसर, ठीक है, चीटिंग मत करना। चीटिंग करोगे तब भी पता तो चल ही जाएगा मुझे, रीजन तो पता रहेगा नहीं अगर चीटिंग करोगे तो। और नेट वेट से ढूंढने की ज्यादा कोशिश कर सकते हो, योर चॉइस, आई नो। और मैं तो कर रही हूँ। नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, योर चॉइस। मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, और ना मिले इसी के लिए मैंने इंश्योर किया है कि एक्स एक्सेस से किया है, ठीक है। सर वो नोट हो गया सबका इस तरफ वाला, नहीं सर थोड़ा बाकी है। ठीक है, हो जाए तो फिर बोल देना। सर वो ये वाला हो गया। हम्म, सर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है सर? सेम क्वेश्चन है जो वहां पे। यहाँ पे जैसे आपने x प्लस पी जेड लिखा है, हाँ तो यहाँ पे क्या लिखा है? देखो, स्फेरिकल वाला कौन सा होता है, एस, बट वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये तो एस प्लस, प्लस ऐसे लिखेंगे। हाँ एस प्लस एस है, बट ये डायग्राम ड्रॉ करने हैं। वहां पर भी डायग्राम्स आर पार्ट ऑफ क्वेश्चन ओनली।
बेसिकली यहाँ पर डायग्राम में ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस टच कर रहे हैं कहाँ पे? पहले वाले पहले वाले में ना, हाँ ये वाला अंदर जा रहा है उसके, और दूसरा वाला भी लगभग टच कर रहा है इलेक्ट्रॉन। दैट इज व्हाट डायग्राम सजेस्ट, राइट? तुमने न्यूक्लियस को ही शिफ्ट कर दिया, वेरी गुड। कैसे चलेगा? न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा ना। मैंने न्यूक्लियस को शिफ्ट कर दिया, सही है। बड़ा बना तो बड़ा बनाओ। पहला वाला नोट हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, this is S and this is DZ. हो गया सर। 7 तक नोट कर लिया। हाँ सर। सर वो ओरिएंटेशन 6th और 7th, this is DZ orbital, DZ, and this is dx square minus y square। DZ स्क्वायर ऑर्बिटल है, D के 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, dxy, dyz, dxy, xz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ठीक है? तो ये dz स्क्वायर के साथ s की ओवरलैपिंग, dx स्क्वायर y स्क्वायर के साथ s की ओवरलैपिंग, s की ओवरलैपिंग, dxy, yz एंड xz की। फिर उसके बाद e के साथ ओवरलैपिंग्स हैं। सिक्स सेवन हो गया है ना हम लोगों का, नोट करके 7th और 8th कॉन्वर्ट करना है। 9 तक हो गया। 9 तक हो गया, 8 हो गया ना, करो जल्दी से। And this line is basically given in pretext to this or this sigma bonds, ठीक है? अच्छा आफ्टर 10th भी है? हाँ, आफ्टर 10th 11th है।
हो गया सर। क्या होगा? ये px है। सर लेकिन ये वाला कैसे ओवरलैप होगा? कौन सा वाला? ये 13th वाला px वाला अरे तो px नहीं हो रहा है ना, कैसे होगा? अगर तुमको नहीं लग रहा है तो लिखो कि नहीं होगा। तो यहाँ पर भी तो लिखा हुआ है कि नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा है इसका रीजन भी आपको पता रहना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग। py का ये पांचों ऑर्बिटल्स के साथ इंटरेक्शन, assuming x as internuclear axis, py का इन पांचों d ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन। dx का पहले देख चुके हैं, now it's py, और py की तरह ही pz का भी रहेगा। if x is internuclear axis, is it okay? अब ओके है कि नहीं वो तो तुम सोचो। एक ऑर्बिटल ये है मेरा, और बाकी इनमें से कोई भी एक ऑर्बिटल एट टाइम्स। तो 14 के बाद आप और 5 क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है ना? 14, 15, 16, 17, 18, 19 हर का पेयर बना के, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। इज इट ओके? यही क्वेश्चन उन सबको मैंने एक ही क्वेश्चन में करा दिया। पहले वाले का नाम क्या है? पहले वाले का नाम dz स्क्वायर है। ये कितना एक बार क्या? ये आपने किया हुआ था, मैं भूल गया कुछ पता नहीं, लेकिन सब बार से ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एटॉमिक ऑर्बिटल के नोट्स को एक बार देखो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीच में अगर मेरे अलोंग उन दोनों के ऑर्बिटल्स मेरे जा रहे हैं, एक्स ऑर्बिटल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जब जा रहे होते हैं, वी कॉल इट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स वाई का मतलब हुआ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में मेरे ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड इस तरीके से। वाई जेड का मतलब है वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड है, और एक्स एंड जेड का मतलब है एक्स एंड जेड के बीच में। जेड स्क्वायर जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, और इसका ये जो बल्ब है दिस इज अलोंग एक्स एंड वाई प्लेन। हाँ, सर dxy माइनस y सर स्क्वायर लास्ट वाला क्या बोला था आपने? एक्स जेड। सर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाला रिपीट करो ना। क्या बोल रहे हो अथर सामन? सर मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, अबे आप बोल रहे हो क्या? हाँ सर, सर वो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का कैसा रहेगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होता है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होता है, अच्छा ठीक है? अलोंग एक्स एंड वाई के अलोंग रहता है तो वी कॉल इट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों जिन जिन एक्सिस के मतलब डी एक्स जेड अगर है मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच बीच में है,
वाई जेड का मतलब वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में है, एक्स एंड वाई का मतलब है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ड्राइंग, दिस ड्राइंग शुड बी मॉडिफाइड and modified. So now this is dxz, this will be plus, this will be plus, this will be minus. अभी चलिए yz वाला दोनों टेढ़ा टेढ़ा रहेगा, लगभग टेढ़ा टेढ़ा है, और ये एक along x एक्सिस रहेगा, दूसरा वाला y एक्सिस रहेगा, इसलिए इसको टेढ़ा बनाए, ये भी टेढ़ा। ठीक है, 2D में जब देख तो टेढ़ा दिखेगा। ठीक है, इन सबको करके आएंगे, सोचेंगे हम लोग थोड़ा सा सोच लेंगे तो नहीं, घर पे बिंदास भाई। और फिर ये टेबल उसके बाद नोट कराऊंगा, ये नोट नीचे नोट कर लेना, इसके नीचे जगह छोड़ लेना थोड़ा सा, देखो कितना बड़ा है। ठीक है, बस ये वाला कर लेंगे हम लोग। आफ्टर डूइंग दैट विच नाउ लेट अस कम टू डिफरेंस ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। We have studied two types of bond, sigma and pi.